Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope that all of you are fine. We had been talking about the Picard's method, and that is one of the methods to solve the ordinary differential equations. So we had already done one example, and I gave you some questions as well. So we are going to talk about few more examples regarding this method. Okay, let's start this. This is an ordinary differential equation that is given to you, y dash is equals to x minus y. And one thing I already told you people, that on the left hand side of this equation, there should be nothing. Like there should be nothing in multiplication or in division or in addition or in subtraction. For example, if there is something, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या प्लस या माइनस, तो सब चीज़ों को लेके राइट हैंड साइड पे लें, ठीक है, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर शुड बी ओनली वाई डैश लाइक इन दिस फॉर्म. ओके, चलो यहाँ पे तो है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अगर जनरल एक्सप्रेशन आपको याद हो तो वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है. तो इट मीन्स ये जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल्स है, ये x minus y है in this case में. Okay. This is your initial approximation. Since we are talking about the initial value problem, so this is your initial approximation. We are not talking about the boundary value problems. I don't know, I can not say at this point कि ये boundary value problems पे I don't think so कि ये चलता है, ठीक है. We are only talking about the initial value problems in this case. आपका ये जो course है, okay. Now this is y at x naught is equals to 0 is equals to 1. It means x naught is equals to 0, and at that initially when x naught is equals to 0, y naught is equals to 1. Okay, so you have to solve this ODE with this initial condition using Picard's method to obtain an expression for y for x is equals to 0.2, correct to 4 decimal places. अच्छा, one more thing, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल की थी उसमें x की कोई टिपिकल वैल्यू नहीं दी हुई थी, and that's why you got an expression, a general expression in terms of variable x. y was depending upon the variable x, वहाँ पे आपको x शो हो रहा था. But in this case they have mentioned this value x is equals to 0.2. It means we would be getting some typical value of y. ठीक है, इनिशियल कंडीशन है, सही बात है, वो उसको सॉल्व करेगा, तो वी विल बी गेटिंग सम टिपिकल वैल्यू ऑफ y बिकॉज दे हैव मेंशन दिस फॉर x इज इक्वल टू 0.2. अब ये जो चीज़ मेंशन है करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब है कि अब जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसमें देखें दे हैड मेंशनड अबाउट द अप्रॉक्सीमेशंस, कि आपने सेकंड तक जाना है, थर्ड तक जाना है, कितनी डिग्री अप्रॉक्सीमेशन तक आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है. ये से ये वाई एन जो है ये अप्रॉक्सीमेशंस को शो कर रहा है ना, कितनी अप्रॉक्सीमेशंस आपने लेके चलनी है. वहाँ पे लास्ट एग्जांपल में हमारे पास 3 अप्रॉक्सीमेशंस थी, y3 हमने n को यहाँ पे 3 तक वेरी किया था और फिर वहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था. In this case they didn't mention anything. They have mentioned that you have to correct your answer up till 4 decimal places. Okay. तो बेहतर ये है कि फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल हैव टू डू, इसका मतलब है कि हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशंस आएंगी इसकी वजह से हमारे पास एक नंबर आएगा, ठीक है. क्योंकि अब इस x को जब मैं कोई वैल्यू यहाँ पे दे दूँगी तो ये मेरे पास एक जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है. जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे एक ये नंबर देगा, और वो जो नंबर होगा वो मैंने कब तक मैंने उस अप्रॉक्सीमेशन को लेकर चलना है, पहले y नॉट थी, फिर y1, फिर y2, फिर y3, जब तक कि मेरा आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक फुल मैच ना हो जाए, ठीक है. या वो क्या होता है, एरर जो होता है 1/2 इंटू 10⁻⁻4 यहाँ पे होगा, एंड 4 जो है वो उससे लेस ना हो जाए, दो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल हैव टू डू इज़ जस्ट मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर is fixed up till 4 decimal places. Okay, now move forward. 4 decimal places पे आपने इसको fix कर लिया. Now what we will do,
Up come to the point, function f of x y that is given to you, that is x minus y, x naught that is equal to 0, y naught that is equal to 1. The value that you have to calculate for this OD is x is equal to 0.2. Okay. Always write all the things that are mentioned in the question. Okay. Now write the general formula. That is yn is equals to y naught plus x naught to x into f of x comma yn minus 1. If there is yn, तो फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो yn minus 1 होगा, ठीक है, 1 स्टेप नीचे होगा, इंटू dx. ओके, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो लिखे. yn इज इक्वल्स टू y नॉट की वैल्यू गिवन है 1 प्लस x नॉट वॉज गिवन टू यू एज 0 और x जिस पर अपने वैल्यू फाइंड करें दैट इज़ 0.2. अब चूँकि आपने फंक्शन जो वेरिएबल है इसको बेशक यहाँ पे बेशक मत लिखें x y नॉट या y1 इस तरह की बेशक चीज़ लिख दें जब आप इसको वो करें, लेकिन फंक्शन देखिए हमारे पास ये है x माइनस वाई, हमारे पास x के ऊपर कोई वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ y के ऊपर हमने जो है वो n को जो है वो वेरी किया हुआ है, ठीक है ना. इसलिए एक्सप्रेशन अगर मेरे पास x माइनस वाई है तो मैं इसको लिखूँगी x माइनस वाई n माइनस 1, ठीक है. ये तो एक्सप्रेशन है ना, ये फंक्शन जो है f ऑफ x कॉमा वाई n माइनस 1 है ना, जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में वहाँ पे उसको एज इट इज़ रहने दें और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे उसको वाई n माइनस 1 से रिप्लेस कर दें. तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, ठीक है, dx. n को जब आपने वैल्यू दी, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव इज द वैल्यू y1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 0 to 0.2 x माइनस now y naught into dx because n is 1 over here. Y naught is given to you and that is 1. So just put it over here. Okay. Now simple integration है x के over 2 minus x. मैंने पहले भी कहा था इसमें आप लोग constants involve नहीं करते because you are evaluating your solution numerically, so you are not going to involve the constants over here. So since this is the definite integral, you are being given with the limits. Just put in the limits. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस करके जीरो लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना. तो जीरो से तो ऑफकोर्स इट वुड बी जीरो. तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग दैट इज 0.2. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दैट यू हैव गॉट, ठीक है, दैट इज y1 इज इक्वल टू 0.2. नाउ सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि देखें y नॉट हमारे पास 1 है और y2 जो है y1 जो है हमारे पास 0.82 है. दिस इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो कहीं भी मैच नहीं होता, ठीक है. Now we will move forward. y2 that is equals to 1 plus again 0 to 0.2. अब चूँकि ये है यहाँ पे आप n को 2 पुट करेंगे तो that will be x minus y1 and y1 you have already calculated that is 0.82. just put in over here. okay, dx. इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन आपकी सिंपल चलेगी, ये कोई इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना. सिंपल x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0.82 इंटू एक्स. ओके, जो आपका एक्सप्रेशन आएगा. फिर जब आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 0.856. अब ये बढ़ना शुरू हो गया, देखिए, ठीक है ना. नाउ इट्स गेटिंग डिफरेंट. सो दिस इज योर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन एंड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू एज 0.856. सिमिलरली यू हैव टू डू दिस. आपने एक और अप्रॉक्सीमेशन लेकर चलेंगे, यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू y3 इज इक्वल टू 0.8488. फिर अगेन यू विल give it some value that is y4 is equals to 0.8502. now you will see ये जो डेसिमल प्लेस है सेकंड तक ये मैच होना शुरू हो गया. you can see that over here you can see 0.85 but you have to move forward because you have to match your answer up till 4 decimal places. okay, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि sometimes it happens कि ये 8584 पे होता है, फिर एक पॉइंट पे आके ये स्टक हो जाता है, ठीक है. ओके, अगला हमने इसको जब किया तो y5 वी आर गेटिंग दिस 0.8499. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अगेन यू आर गोइंग टू गिव इट सम वैल्यू y6 दैट इज़ 0.8500. इवन देन अभी देखें मैच नहीं हो रहा, ठीक है. एक और अप्रॉक्सीमेशन दी. व्हाट आई विल डू, अब मैंने इसको y7 निकालना है तो y7 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 0 to 0.2 x माइनस y6.
y6 is 0.8500. Just put it over here, dx, integrate it, get the value, put in the limits, and then just get your answer. Luckily, we have get this y7 is equals to 0.8500. And this is exactly the same. You can see that the y6 and the y7 values are exactly the same up till 4 decimal places. So they had asked us to correct your answer for y, to obtain y for x is equals to 0.2 at this typical value up till that answer should be correct up to 4 decimal places, and this we have done. So this is your final answer. Okay, ये जो इसका आंसर आता है that will be a function of, यानी कि जो उसको आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो that will be would be of this form y of x is equal to something like that. ठीक है, तो y at the value 0.2, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन तो मिला नहीं है हमें. ठीक है, तो y at 0.2 that will be equals to 0.8500. So this is your final answer. Okay, so in the next lecture I will be talking about one more example regarding this method, and that will be from your book. Okay, thank you.